سب سے پہلے براہ راست آپ کو لیے چلیں گے لاہور یوم تکبیر کی تقریب سے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف ویڈیو لنک سے خطاب کر رہے ہیں۔ 5 سال پہلے کے ایک ناقابل فراموش واقعہ اور اس دن جب ہندوستان نے 5 ایٹمی حملے کر پاکستان کو مرعوب کرنے کی کوشش کی، اس دن پاکستان کے عوام نے اپنے قائد وزیر اعظم میاں نواز شریف نے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے دفاع کو ہمیشہ کے لیے قابل تشہیر بنایا، دشمن کے ہمیشہ کے لیے بٹے کر دیے۔ اور مجھے یاد ہے آج بھی جیسے کہ وہ دن گزر رہا کہ ہمارے انسانوں نے ملٹری لیڈرشپ نے وزیر اعظم نواز شریف کو ایک مرتبہ میں پروسیس کو اسٹارٹ ریورسبل ہے، واپس نہیں آ سکے گا۔ اور وزیر اعظم نواز شریف کیا کہا ہے کہ اللہ کے نام سے آپ سٹارٹ کریں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا آپ نے بات 5 میاں نواز شریف اللہ تعالیٰ کے سہارے عوام کی جان سے اور کوئی پریشر، کوئی خطر میں نہیں، اور سب جانتے ہیں کہ 5 ارب ڈالر کے معاشی پیکج جو پائے حکارت سے ٹکرایا، وطن کا انٹرسٹ تھا پاکستان کا، بعد وہ مقدم تھا، اور میاں نواز شریف بدلے میں معاشی صدر بل کلنٹن نے یہ بات کہ میں یہ کام ہندوستان کیا، لیکن میں آپ نے بزرگوں، بھائیوں اور بہن انجام کا آغاز یقیناً جناب چارلی بھٹو اور سے شروع ہوا، تمام ادوار میں تمام حکومتوں نے، تمام سیاسی قیادتوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ 28 مئی کو اسلامی دنیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک پہلا واحد اسلامی ملک جو کہ طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے، اور اس کے پاداش میں اگر آپ نے دیکھا پر پابندیاں اور کس طریقے سے ہم پر سختیاں کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ آج سے لے کر تمام یوز کو ہمیں سلام کرنا ہے۔ انہوں نے عظیم کام میں اپنا ڈالا، وہ سب عظیم وطن لوگ، وہ سب عظیم غازی پاکستان کو ایک ایٹمی توانائی بنانے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا، اور وہ کام کیے جو کہ عقل دیکھ دنگ رہ گئے، اور پاکستان کی جو قوم تھی مخصوص پاکستان کے اندر ایک یونٹی تھی،
کہ ہم نے اس پروگرام کے لیے ہر قربانی دی، لیکن پاکستان کا جو دفاع ہے اس کو ناقابل تسخیر بنانا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح بھارتی بلوچستان کے پہاڑوں کی میں بھارت کی ضرور خاک ملا، اور کس طرح وہاں پر اکبر اور وہاں پر گونج وہاں پر پوری دنیا نے سنی اور نعرہ تکبیر وہاں پر لگایا گیا۔ آج جہاں پر ہم ان تمام ہیرو کو یاد کرتے ہیں، میاں نواز شریف اور تمام سیاسی قیادت کو یاد کرتے ہیں، وہاں پر ہم کسی صورت اس دوست کا نام نہیں بھولنا چاہیے جس نے یہ قوم تقدیر جس نے نام سنا تھا۔ اس شخص کو بھی ہمیں آج یاد رکھنا ہے، اور اس نے یہ نام قوم تقدیر نام ہمیشہ تک یاد رکھا جائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی، یہ فیصلہ اتنا اہم کیوں تھا؟ کیا وجہ تھی کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ فیصلہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا؟ بلکہ ہر سال ہم اس کو ان کو پوری طرح زور سے منائے کی وجہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا، قوم نے فیصلہ کیا، ہمارا وزیر اعظم نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ دنیا میں زندہ نہیں رہنا، ہم دنیا میں جینا ہے سر اٹھا کے جئیں گے، ہم دھاندلی اپنے سر کریں گے، پیکج ہم چکے، ہم اس قبول نہیں ہوں گے۔ جس کو حضرت قائد اعظم میں لاکھوں مسلمانوں کی قربانی بنایا گیا، جس کا کہ پاکستان ایک جو کہ حضرت اسلامی ممالک میں پورے گا قبض فیض والی جو ہے وہ بہت بلند وہ ہوگا، اور اس جھنڈے عزت اور تقریب اپنے اور غیر سب کریں گے۔ قائد اعظم نے تحریک چلائی تھی اور مئی کو اس کی تعبیر نواز شریف کی قیادت میں دھماکہ کر گئی۔ لہٰذا آج ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیں تمام ممالک کا شکر ادا کرنا ہے جنہوں نے اس سارے میں ہمارا ساتھ کیا۔ اسلامی ممالک کا شکر ادا کرنا ہے، مالی انہوں نے ڈپلومیٹک طور پر ہر لحاظ سے پاکستان کی دلجوئی کی اور پاکستان کی مدد کی، اور ان اسلامی ممالک پاکستان کو اور مالی امداد دی۔ وہ اس لیے وہ ایٹمی طاقت کی ضرورت نہیں ہوئے پاکستان، وہ اپنے برادری کے رشتے جو ہمارے کام ہے اور قائم رہیں گے احترام میں انہوں نے بھرپور۔ آج ایک بار پھر ہمارے خلاف کر رہا اور جنگ کا دباؤ بڑھانے کے لیے پوری کوشش لا رہا ہے۔ یاد ہوا کہ 26 فروری 2019 کو ہونے والی جارحیت پاکستان ہمارے شاہینوں نے پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا تھا، اور آج ہندوستان کشمیر میں جموں کشمیر میں جس طرح کی ایک تاریخ رقم کر رہا ہے، اور دوسری اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، جنیوا کنونشن کی میں چاہوں کہ اس کی رقم کر رہا ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ
कर रहा है और आलमी राब्तों को हवा में उड़ा रहा है। ये उसको जरूरत क्यों पर हुई? मेरी ये बड़ी संजीदा ये एनालिसिस है, मेरा बड़ा सीरियस एनालिसिस है। उसकी वजह ये है कि हमारी यहाँ पर जो मौजूदा हुकूमत है, उनके सरबराह जो हैं वो कंफ्यूज हैं। उनको ना मईशत का पता है, ना उनको समाज का पता है, ना उनको डिप्लोमेसी का पता है, ना उनको आदाब का पता है। चाहे कोरोना हो, उसके अंदर किस तरह कन्फ्यूजन फैलाई गई। चाहे आप देखें कि कश्मीर के अंदर जिस तरह हिंदुस्तान ने जुल्म सितम किया और कश्मीर की वादी बेगुनाह मुसलमानों के खून से सुर्ख हो गई, और उसके ऊपर जिस तरह कंफ्यूज वज़ीर आज़म ने लीडरशिप नहीं दिखाई। हर लिहाज से हमारी मईशत कोरोना के आने से पहले ही दम तोड़ रही थी। कोरोना के बाद जो रही कसर थी वो भी बदकिस्मती से निकल गई। लेकिन ये है लैक ऑफ लीडरशिप, ये है एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसने कौम को इकट्ठा नहीं किया। ये है वो वज़ीर आज़म जिसने कौम को यूनाइट नहीं किया। ये मौका था कि तमाम तर इख्तिलाफात को एक तरफ करके, तमाम तर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं को एक तरफ करके आगे बढ़ते और पूरी कौम को इकट्ठा करते। मगर मैं आपको यहाँ पर मैं वो मिसालें, दिलखराज मिसालें नहीं बताना चाहता जो हालिया महीनों में हुई कि हम इकट्ठे हुए और उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म ने कौम को इकट्ठा करने की उस शानदार गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी से ज़रा फायदा नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। और आज चूंकि कोरोना में पूरी दुनिया घिरी हुई है, पाकिस्तान में कोरोना ने बहुत तबाही मचाई हुई है। हमें आज 28 मई के इस अजीम दिन को बड़ी सादगी से मनाना है और अपने अपने घरों में आपने नारा तकबीर आपने बुलंद करना है, नवाफिल अदा करने हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। उससे दुआ मांगनी है कि वो हमें हिम्मत दे कि हम मिलकर पाकिस्तान को इस वबा से हम जान छुड़वाएं, हम मिलकर पाकिस्तान की मईशत को हम मजबूत करें। और हमें खसूसी दुआ करनी है कि हमारे कायद इस पाकिस्तान के मोहसिन मियां नवाज शरीफ, जिन्होंने आज के दिन तमाम तर पेशकशों को ठुकरा कर और किसी भी धोन और किसी भी धमकी से वो मरूब नहीं हुए और पाकिस्तान के दिफा को उन्होंने मजबूत किया, उनकी सेहत के लिए हमने आज के दिन खुसूसी हमने दुआ करनी है। और फिर हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि मिलकर मिनहाजुल कौम हमने मिलकर तमाम इदारों ने, सियासतदानों ने, एक दिहाड़ीदार ने, एक मजदूर ने, एक किसान ने, एक डॉक्टर ने, एक इंजीनियर ने, हम सब ने, एक दानिश्वर ने, हमने मिलकर पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए हमने मैदान अमन में हमने निकलना है। और जिस तरह हमने पाकिस्तान को एक जौहरी ताकत बनाया, इस तरह पाकिस्तान की मईशत को हम एक जौहरी मईशत बनाएं। ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। और इसका रास्ता क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसकी स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी वही है जिस तरह कौम एक यकजा दो कालिब होकर हम एक जौहरी कुव्वत बने, इस तरह हम पाकिस्तान को दोबारा हम एक अल्लाह ताला के फजल करम से एक बड़ा मजबूत माशी कुव्वत बना सकते हैं। बदकिस्मती देखा आपने कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इन दिनों में हमें कतल सियासत नहीं करनी, लेकिन जो हकायक हैं उनसे आप जान नहीं छुड़ा सकते, हकायक से आप छुप नहीं सकते कि किस तरह 5.8% GDP जो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में PMLN ने 2018 में छोड़ी थी, आज वो सिर्फ जो कोरोना से पहले वो सिर्फ 1.9% पे रह गई। और इस दौरान 2018 और 19 और 20 के दौरान हुकूमत ने खूब अपना डोंगरे बरसाए और ढोल पीटे की जो मईशत जो है, जो GDP है वो 3.9% या 3.9% है, जो कि सरासर गलत निकला। इन्हीं के जो इदारे हैं उन्होंने कहा कि नहीं,
ये 1.9 है, उससे क्या हुआ? लाखों लोग बेरोजगार हो गए, मईशत, आपकी ज़रूरी मईशत आपकी तबाह हो गई, आपकी जो सनदी मईशत वो तबाह हो गई। जो लोकस है, ये टिड्डी दिल, इसने तबाही मचाई है। सिंध में, बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में कोई पूछने वाला नहीं। मैं वापस आता हूँ आज के मौजूद के ऊपर कि हमने मिलकर, जिस तरह हमने पाकिस्तान को एक जौहरी कुव्वत बनाया था, आज हमें तमाम चैलेंज का मुकाबला करना है। अल्लाह ताला से दुआ करती है कि हमको हिम्मत दे और यकीन करें ये नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है। Wherever there is a will, there is a way। और मेरा ईमान है, मेरा दिल कहता है, मैं अज़्म समीन से ये बात कर रहा हूँ, कि यकीन मुकम से ये बात कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर हम मिलकर अपनी मईशत को संभाला देने के लिए हम मैदान अमल में निकल पड़े तो फिर कोई पहाड़, समुंदर, दरिया हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। उसकी जरूरत किस चीज की जरूरत है? इत्तेहाद, इत्तेफाक, नज़्म ज़ब्त और यकीन मौकम। इस यकीन के साथ कि हम इसको कर गुजरेंगे, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, कितने भी अपना कठिन हमें मराइल हमें सामने आए, कितने भी थौनी जो रोड्स हैं उससे भी गुजरना पड़े, कांटों बड़े सफर से हम गुजरेंगे और जिसम लहू लुहान होगा, कोई फर्क पड़ता, लेकिन एक दिन आएगा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान दोबारा माशी तौर पर हम एक अजीम मुल्क बनेगा। क्योंकि माश के बगैर अब ये माश दफा ये जुड़े हुए हैं, दिफा और माश जुड़े हुए हैं। अगर दिफा अगर हमारा मजबूत है और माश कमजोर है तो वो कमजोरी है। अगर हमारा दिफा खुदा न खास्ता कमजोर और माश, तो ये एक चोली दामन का साथ है। दे आर इंटरलिंक्ड, इंटरट्वाइंड। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा दिफा तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है हर लिहाज से, चाहे वो जौहरी ताकत हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान की मजबूती हो। हमें अगर इंशाअल्लाह अपने माश को मजबूत कर लेंगे, इकोनॉमी को मजबूत कर लेंगे, तो कोई हमारा बाल भी बेकार नहीं कर सकेगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल के इस शेर के ऊपर कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आइए आज हम मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जो हमने जो अचीव एक अजीम एक मार्का मारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने मिलकर, उसका दिन हम मना रहे हैं। आइए हम मजीद वक्त ज़ाया न करें। आइए कि हमारे सामने चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, आइए हम बाहम दस्तों गिरेबा होने के बजाय उस दुश्मन के खतरे के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं जो हम सबको खुदा न खास्ता नाकाम देखने का आरज़ूमंद है और हम पर वार करने पर तुला बैठा है। आइए हम समझे कि मजबूत, मुत्तहिद और माशी कुव्वत का हामिल पाकिस्तान न सिर्फ खत्ते और पूरी दुनिया बल्कि आलम इस्लाम के लिए भी नागुज़ीर है और कोई चीज़ इस दुनिया में नामुमकिन नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट इज डिफिकल्ट बट नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलो कर ले। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला हमेशा आबाद रखेगा और इन मराइल से, इन बरानों से हम निकलेंगे, ये वबा खत्म होगी और इंशाअल्लाह हम दोबारा अपना मकाम हासिल करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ यौम तकबीर की तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाज़त देने का फैसला किया है। ज़राए पंजाब हुकूमत का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को रेस्टोरेंट्स खोलने की सिफारिश कर दी है। मामला हतमी मंजूरी के लिए NCOC के इजलास में पेश किया जाएगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान बख्श हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे मजीद। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर आज कोरोना की जो काबीना कमेटी है उसका इजलास हुआ। सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत, जिसके अंदर सूबे भर में जो रेस्टोरेंट्स हैं उसकी जो इजाज़त है वो देने का फैसला किया गया। ताहम इस जो इजाज़त है वो वफाकी हुकूमत को इसकी सिफारिश कर दी गई है और जो मामला है वो हतमी मंजूरी के लिए NCOC के इजलास में पेश किया जाएगा। साथ ही साथ सूबे भर की जो मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स हैं उनके औकात कार भी वजह किए गए हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बाजार खुले होंगे।
पंजाब भर की जो मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स हैं वो हफ्ते में 4 दिन काम किया करेंगे। जुमेरात के रोज तक, पीर से लेकर जुमेरात तक मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, जबकि जुमा, हफ्ता और इतवार को मार्केटें बंद रहेंगी। इसी तरह मरी और गलियात में जो होटल इंडस्ट्री है उसको भी इजाजत देने के लिए वफाकी हुकूमत से रजू करने का फैसला किया गया, जबकि साथ ही साथ इन दोनों मकामात पर जो होटल इंडस्ट्री है उसको भी इजाजत देने की सिफारिश की जाएगी। इन तफरीही मकामात को खोलने के हवाले से जो भी हतमी फैसला होगा वो NCOC के इजलास में होगा। जो पंजाब की काबीना कमेटी का इजलास था, इसकी सदारत सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने की, जबकि वजीर कानून राजा बशारत और वजीर तिजारत मियां असलम इकबाल और वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद इस इजलास में शरीक थी। जी बहुत शुक्रिया ज़िशान अपडेट करने के लिए। कराची तैयारा हादसा, वजीर शहरी हवाबाजी गुलाम सरवर खान का इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट 22 जून को पार्लियामेंट और अवाम के सामने पेश करने का ऐलान। इंक्वायरी पर उन्होंने इजहार इत्मीनान किया। कहा, अहम सवाल ये है कि जहाज़ 3 बार ज़मीन से टकराने के बाद दोबारा उड़ाया गया। जहाज़ के दोनों बॉक्सेस मिल चुके हैं। जहाज़ किसके कहने पर नीचे आया और किसके कहने पर उड़ा, मालूम हो जाएगा। $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जहाज एक बार लैंडिंग कर गया और 3 बार उसने टच किया, फिर क्यों उठाया गया? इस चीज की भी इंक्वायरी हो रही है ना। यही तो असल बात है कि ये गलती किसकी थी। क्या वो इजाजत के साथ उसने लैंडिंग की या विदाउट परमिशन उसने लैंडिंग की? अगर उसने लैंडिंग की कि क्या किसी ने उसे उठाने का कहा या उसने खुद जहाज को उठाया? तो ये सारी चीज़ें देखें। वॉइस रिकॉर्ड और डेटा रिकॉर्ड दोनों जहाज़ के कॉकपिट्स में, जहाज़ के अंदर मौजूद होते हैं और दोनों इक्विपमेंट्स, दोनों बॉक्सेस मिल चुके हैं। एक तो अभी मिला है बाद दोपहर, एक इससे पहले मिल चुका है। ये फ्रेंच अथॉरिटीज़ इसे फ्रांस लेके जाएंगी, वो डीकोड करेंगी। उसमें जो उनकी कन्वर्सेशन है, जो डाटा कन्वर्सेशन है वो भी, और जो वॉइस कन्वर्सेशन है वो भी, दोनों उसकी रिपोर्ट फ्रेंच अथॉरिटीज़ देंगी। टेक्निकल क्वेश्चंस हैं कि जहाज़ उठा क्यों और जहाज़ लैंड क्यों हुआ, किसी के कहने पे लैंड हुआ या किसी के कहने पे उठा। ये तो देखें ना, ये वॉइस भी और डाटा भी रिकॉर्डेड होगा और ये चीज़ सामने आ जाएगी। कराची की अदालत में PIA तैयारा हादसा केस में वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान, CEO अरशद मलिक और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर की गई है। सेशन जज शर्की की अदालत में दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 22 मई को लाहौर से कराची आने वाला PIA का तैयारा मॉडल कॉलोनी में गिरकर तबाह हुआ। हादसे में 97 मुसाफिर जाँ बहक हुए और 2 मुसाफिर जिंदा बचे। तैयारे को फ्लाइट से पहले अच्छी तरह चेक नहीं किया गया। तैयारा हादसे की जिम्मेदारी वजीर हवाबाजी, CEO PIA और दीगर पर आयद होती है। गुलाम सरवर खान, अरशद मलिक, ग्राउंड इंजीनियर और चीफ इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। DG ISPR का कहना है कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को कामयाबी से एटमी तजुर्बात किए। 28 मई को कम अज़ कम जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की थी। 28 मई को पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बहाल किया। DG ISPR का यौम तकबीर पर बयान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को कामयाबी से एटमी तजुर्बात किए। 28 मई को कम अज़ कम जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की थी। 28 मई को पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बहाल किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। DG ISPR का यौम तकबीर पर बयान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को कामयाबी से एटमी तजुर्बात किए। DG ISPR ने कहा कि 28 मई को कम अज़ कम जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की थी। 28 मई को पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बहाल किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। DG ISPR का यौम तकबीर पर बयान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में टिड्डी दल के हमले से लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर हुई हैं। मुतासरा काश्तकार टिड्डी दल के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात को नाकाफ़ी करार दे रहे हैं। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान चौधरी। टिड्डी दिल मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों मतीतल, साई चाहवन, बंदबोसन, तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर के दर्जनों मवाज़ात में 4 दिन तक अपना हमला जारी रखते हुए हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें, चाराजात और बागात को शदीद मुतासिर करके जनूबी पंजाब के दीगर अजला का रुख किया। मुल्तान में हमले के दौरान टिड्डी दिल ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घरों और पार्क, सड़क किनारे लगे दरख्तों तक को ना छोड़ा। यहाँ कोई भी इंतजामिया हमारी मदद को नहीं आई, फसलों को नुकसान हो रहा है। स्ट्रॉबेरी की फसलें बर्बाद करके चली गई, बहुत ज़्यादा हमला
وغیرہ کر رہی ہے، محکمہ زراعت کے سے اپیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ سپرے وغیرہ کریں۔ ان تمام علاقوں میں حملے کے وقت مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹڈی دل کو بھگانے کے لیے مختلف ٹوٹکے آزمائے اور کسی نے سپرے کر کے اس کو بھگانے کی کوشش کی۔ حکومتی ٹیمیں اس وقت ان علاقوں میں پہنچیں جب ٹڈی دل کاشتکاروں کی محنت ضائع کر چکی تھی۔ ہمارے 3000 سے زائد جو اہلکار ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں۔ پاک آرمی، پی ڈی ایم اے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ضلع انتظامیہ ہمہ وقت فیلڈ میں موجود ہے اور ڈیلی بیسس پہ سرویلنس کر رہی ہے۔ جہاں یہ سوام سیٹل ہوتے ہیں وہیں پہ اس رات کو آپریشن کر کے کلا کما کر دیا جاتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ٹڈی دل نے جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع کو ہی متاثر کیا ہے۔ ان اضلاع کے 98 لاکھ ایکڑ کی سرویلنس کی جا چکی ہے، جبکہ 3,70,000 ایکڑ رقبے پر سپرے کیا گیا ہے۔ سپرے کے لیے 3 جہازوں کی مدد بھی لی گئی تھی۔ عالمی ادارے پاکستان کو ٹڈی دل کے جون کے وسط میں شدید حملے کی پیشگوئی کر چکے ہیں۔ کیمرہ مین ایوب قریشی کے ساتھ عمران چودھری، جیو نیوز، ملتان۔